Hello everyone, welcome back to the lecture of pharmacology by MKT. Yeah, that's me, Dr. Mangesh Kumar Tripathi. So guys, आज के lecture में we'll be starting with a very important topic of the endocrine system and that is osteoporosis. Now guys, what is osteoporosis? किसी को पता है? Yes, this is a condition in which there is decreased bone density mass or bone mass density is decreased. ठीक है? So which can lead to the fractures. ठीक है? So it is a decreased bone density mass in the bone. There is decreased bone density जिसके वजह से जो bone होगा वो एकदम porous हो जाएगा, एकदम खोखला हो जाएगा, and that is called as the osteoporosis, guys. Now guys, osteoporosis को अगर मुझे क्लासीफाई करना है, हाउ टू नो दैट भाई इस बोन में इट इज अ नॉर्मल बोन, ये बोन में देयर इज डिक्रीज कैल्शियम और फास्फोरस, और कुछ बोन्स में देयर इज डिक्रीज्ड मतलब सिवियर पोरस नेचर दिखेगा, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस. सो डब्ल्यूएचओ guys, WHO has classified the degree or the types of osteoporosis by T score. So please make a note that your osteoporosis is classified by the T score which is given by the WHO. वो बोलता है कि if T score, WHO says if T score is between लिख लेना आप लोग, between 0 to -1, then it is a normal bone. Just remember that. Then it says if T score, guys, is between -1 to -2.5, means there is some loss of calcium and phosphorus. You know, calcium and phosphorus are the most important minerals present in the bone. ठीक है? So osteopenia उसको बोलते हैं. And if T score, WHO बोलता है, it says that if T score is between, or we can say it says it is more than -2.5, then it is short osteoporosis. That person is suffering from osteoporosis. Now guys, osteoporosis मतलब bone mass density decrease हो रही है. मतलब अब bone mass density कौन से एज में होती है? यंग एज में तो नॉर्मली नहीं होती, इट इज मेनली इन द एल्डरली. सो अगर हम स्क्रीनिंग एज देखेंगे, सो प्लीज इसको भी लिख लेना, दैट स्क्रीनिंग age of osteoporosis in male it is 70 years, in female guys it is 65 years. So ये सबको पता होना चाहिए that the screening age of osteoporosis in male and female is 70 and 65 respectively. ठीक है, ये हमारा स्क्रीनिंग एज हो गया. ठीक है, और अगर रेफरेंस एज देखिए भाई किस एज से हमको देखना है, किस एज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, सो प्लीज रिमेंबर दैट रेफरेंस एज, ये जो लिया गया है, और वी कैन से दिस रीडिंग जो दिख रही है, द रेफरेंस एज हम लोग ने लिया है 30 years. So please remember the reference age group we have taken for osteoporosis as 30 years. But अगर screening is देखा जाए osteoporosis का, so it is male में 65 साल and sorry male में 70 years, female में it is 65 years. Understood this much? Okay. Now guys, this T score जो हमने लिखा है, it is measured by a scan. Yes, MCQ के लिए याद रखना that scan is called as the DEXA scan. So T score is measured by DEXA scan. अगर हम उसका फुल फॉर्म देखें, सो अगर मुझे फुल फॉर्म देखना है DEXA का, सो इट इज ड्वेल एमिशन एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री. सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ DEXA स्कैन. ठीक है, विच मेजर्स द टी स्कोर. ठीक है, इतना समझ गया. अब एक चीज और है दैट इन ऑस्टियोपोरोसिस देयर आर 3 मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर विच इज कॉमन. अगर हम देखें, सो इट इज वर्टिब्रल फ्रैक्चर, मोस्ट कॉमन is vertebral, followed by the hip fracture, followed by the Colles, that is radial fracture. ठीक है, इसका याद रखना, it is a radius fracture. So it is V followed by H followed by C. So remember the most common fractures in osteoporosis because of osteoporosis is vertebral, followed by guys hip, then it is by Colles fracture. इतना सबको समझ गया? Okay. अब the minerals, or we can say the hormones responsible for bone growth or bone mineralization. The first is, please remember, vitamin D.
then we have calcitonin, then we have parathormone PTH guys, parathormone that is parathyroid gland secrete करता है, calcitonin is secreted by thyroid gland में parafollicular cells है वो, and PTH, and there is one more fibroblast growth factor 23, इसका full form लिख लेना, it is fibroblast growth factor 23. So these are the three factors which, or the hormones we can say, who regulates the main two factors, main two minerals, that is calcium and phosphorus. ठीक है, so ये हमारे चार मेन सब्सटेंस हैं जो इन मिनरल्स को, जो कैल्शियम के लिए सबसे, बोन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको रेगुलेट करते हैं. अगर हम देखें गाइस, विटामिन डी का कैल्शियम पे क्या एक्शन होता है, इट इंक्रीजेस, अभी इतना याद रखना, इट इंक्रीजेस serum calcium as well as it increases serum phosphate, while calcitonin decreases both, while PTH increases calcium and decreases phosphorus. ठीक है, बट अब ध्यान से सुनना दैट गाइस, हम लोग जब भी बोलते हैं कि भाई हड्डी या बोन, ठीक है, या ऑस्टियोपोरोसिस, कोई भी कंडीशन बोलते हैं हड्डी से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड, तो हमारे दिमाग में आता है भाई कैल्शियम. कैल्शियम ही सबसे इंपॉर्टेंट है जो भाई बोन में होता है, तो बोलते हैं भाई अच्छा है, अगर कैल्शियम कम है तो इट इज नॉट गुड, इसलिए हम लोग कैल्शियम सप्लीमेंट्स एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स देते हैं. ठीक है, सो अभी के लिए जस्ट रिमेंबर द कैल्शियम थिंग. अभी फॉस्फोरस जस्ट हम लोग उसको हटा देने, बिकॉज कैल्शियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर मैं देखूं कैल्शियम 1.5 to 2 kg का अमाउंट इज प्रेजेंट इन द बोन ऑफ कैल्शियम, while 1 kg is present of phosphorus in the bone. This is how this both minerals are very very important. But the most important mineral और जो hormones जिसको सबसे ज्यादा रेगुलेट करेंगे वो है हमारा कैल्शियम. तो हमारा मेन फोकस हम लोग कैल्शियम पे करेंगे, एंड देन विल मूव टू दी ऑस्टियोपोरोसिस की कौन से ड्रग्स होते हैं. ठीक है, ओके. सो हमने ये चीज बोल दिया था, कैल्शियम, vitamin D increases serum calcium, calcitonin decreases serum calcium, PTH also increases calcium, and fourth is FGF23, fibroblast growth factor, which is bad for bones. ठीक है, it is not good for bones. ठीक है, it is not used in the treatment for bones. ठीक है, बस आपको नाम पता होना चाहिए कि FGF भी एक है जो कैल्शियम को रेगुलेट करता है, वो कैल्शियम को बोन में नहीं बढ़ने देगा, दैट यू शुड नो. ठीक, ओके. सो जस्ट वी सॉ दैट विटामिन डी कैल्शियम को बढ़ाता है, कैल्सिटोनिन कैल्शियम को कम करता है, और हमारा PTH कैल्शियम को ब्लड में बढ़ाता है. ठीक है, अगर हम ये ऐसा देखें तो भाई विटामिन डी अगर कैल्शियम बढ़ा रहा है मतलब इट इज गुड फॉर बोन. ठीक है, कैल्सिटोनिन अगर वो डिक्रीज कैल्शियम करे, इट इज नॉट गुड फॉर बोन. इन जनरल अगर ये देख के हम लोग अंदाजा लगा, बट इट इज नॉट लाइक दैट. देखो, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डी में कैल्शियम कम है, मतलब हमारा जो भी हम ड्रग देंगे या जो भी हार्मोन्स या सब्सटेंस देंगे, उसको क्या करना है, इट शुड इंक्रीज द बोन कैल्शियम, तभी हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. सो अगर विटामिन डी कैल्शियम को बढ़ा रहा है, वो कैसे बढ़ा रहा है, बाय टू थिंग्स. जस्ट रिमेंबर दैट इन GIT it increase absorption of calcium. Also it decreases excretion of calcium from kidney. So kidney से एक्सक्रीशन बढ़ा रहा है और एब्जॉर्प्शन GIT में बढ़ा रहा है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिर जाके क्या करता है, इट इंक्रीजेस बोन कैल्शियम. सो अगर बोन में कैल्शियम बढ़ा रहा है मींस इट इज यूज्ड इन ऑस्टियोपोरोसिस ट्रीटमेंट. ठीक है, अब कैल्सिटोनिन क्या कर रहा है गाइस, डिक्रीज दी सीरम कैल्शियम. ठीक है, कैसे डिक्रीज कर रहा है सीरम कैल्शियम को, बाय इंक्रीजिंग बोन कैल्शियम. सो अगर ये बोन कैल्शियम को बढ़ा रहा है मतलब इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, दैट यू शुड नो. सो ये दोनों हमारे हार्मोन्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. बट PTH गाइस देखिए, इट इंक्रीजेस सीरम कैल्शियम, कैसे, बाय डिक्रीजिंग बोन कैल्शियम.
सो बोन से कैल्शियम हटा रहा है, कम कर रहा है, सो इट इज नॉट यूज्ड मोस्टली इन ऑस्टियोपोरोसिस, बिकॉज वो ऑस्टियोपोरोसिस को बढ़ा रहा है, ठीक है, कैल्शियम को बोन से रिजॉर्ब कर रहा है, हटा रहा है, ठीक है, और कैल्शियम को ब्लड में बढ़ा रहा है। नाउ गाइस, ये हमने नॉर्मली 12th में भी पढ़ा था दैट, और फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी, दैट पीटीएच इंक्रीजेस सीरम कैल्शियम, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज hypercalcemic hormone. Since PTH increases, guys, what? Serum calcium, it is also called hypercalcemic hormone. While calcitonin decreases serum calcium, it is also called as hypocalcemic hormone. ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक है। सो दैट दिस थ्री सब्सटेंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रेगुलेट द कैल्शियम, ब्लड कैल्शियम, ठीक है, दैट इज बोन एंड ब्लड कैल्शियम बोथ, ठीक। सो विटामिन डी एंड कैल्सिटोनिन जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस में यूज हो रहे हैं, व्हाइल पीटीएच इज नॉट यूज्ड इन द ऑस्टियोपोरोसिस। तो दिमाग में एक चीज हमेशा रखना, अगर आपको ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस लिखना है, सो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कैल्शियम जो चाहिए, तो याद रखना कैल्शियम तो देना ही है, अलग से आप दो साथ में, प्लस विटामिन डी ऐड कर दे, बिकॉज विटामिन डी इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। सो विटामिन डी एंड कैल्शियम तो मैंडेटरी है हमारे ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस में। अब उसके साथ और क्या हम लोग दवा देंगे, दैट विल सी द नेक्स्ट हेडिंग, ठीक है। इतना सबको समझ गया दैट विटामिन डी एंड कैल्शियम तो मैंडेटरी है ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट में। अब ये लोग, इसमें कैल्सिटोनिन वी कैन यूज समटाइम, बट हमारा पीटीएच, वी नॉर्मली डोंट यूज पीटीएच इन ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक। अब हम लोग देखेंगे गाइस व्हिच आर द ड्रग्स यूज्ड इन ऑस्टियोपोरोसिस। तो आप लोग हेडिंग दे दो, द ड्रग्स यूज्ड इन ऑस्टियोपोरोसिस। Before we move to the drugs used in osteoporosis, we should know something about vitamin D. Now, vitamin D, you know, is actually a steroid hormone. हम लोग उसको बोलते हैं it is also hormones, that is a steroid hormone. ठीक है। अब in humans, in skin, there is a substance called as 7-dehydrocholesterol. Now, because of UV sunlight, it gets converted into the cholecalciferol. Cholecalciferol, which is your vitamin D. ठीक है, विटामिन डी, ठीक है। तो सनलाइट से हमारी स्किन खुद ही सिंथेसाइज कर देती है विटामिन डी, बट इट इज नॉट एक्टिव, इट इज प्रो ड्रग हम लोग बोल सकते हैं, इट इज नॉट एक्टिव, इट इज इनएक्टिव ड्रग। नाउ हाउ इट बिकम्स एक्टिव, ये आप लोग लिख लेना दैट in liver there is an enzyme called as 25 hydroxylase. So hydroxylation होगा on 25th, ठीक है, structure of this steroid, so it becomes 25 hydroxy cholecalciferol, और कैल्सीडायोल हम लोग बोल सकते हैं। एक हाइड्रोक्सी और आ गया, इट बिकम्स कैल्सीडायोल। पहले से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक और आ गया, इट बिकम्स कैल्सीडायोल, बट अभी स्टिल इट इज इनएक्टिव। नाउ इन इट गोज इन किडनी व्हाट हैपेंस, देयर इज अगेन एन एंजाइम कॉल्ड 1 alpha hydroxylase, so it forms 125 दो dihydroxy cholecalciferol, and this is the active form which is also called as calcitriol. So this is the active form, ठीक है, जो हमारे कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, जीआईटी से बढ़ाता है, ठीक है। सो दैट इज विटामिन डी, ठीक है, दैट इज D3 हम लोग बोलते हैं, कैल्सीट्रायोल, ठीक है, बिकॉज 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर देयर। सो ये आप लोग लिख लेना दैट हाउ विटामिन डी सिंथेसाइज इन द स्किन, देयर इज अ सब्सटेंस 7-dehydrocholesterol, in presence of UV light gets converted into cholecalciferol. In liver and in kidney there is hydroxylation occurs and it forms the calcitriol or 125-dihydroxy cholecalciferol, ठीक है। अब in general अगर हम देखें uses of vitamin D, लोग लिख लेना uses of vitamin D, just remember by a mnemonic, ये लिख लेना bones, BONES. E stands for bone mineralization and growth. So it is responsible for the bone mineralization,
कैल्शियम को वो करता है, उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, एंड ग्रोथ. O stands for osteoblastic and osteoclastic activity. Guys, just remember that bones में there are two cells responsible for the formation of the osteocytes mainly, and that is osteoblast and osteoclast. So osteoblastic and osteoclastic activity regulation. N stands for normal calcium and phosphate regulation in intestine. ठीक है. E stands for it enhances renal absorption of calcium, and S stands for it suppresses excess PTH secretion. ठीक है, understood? So that is, it is used in the treatment of, we can say, hyperparathyroidism, when there is excess of parathyroid. ठीक है. Now guys, बोन मिनरलाइजेशन एंड ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब इट इज यूज्ड इन सम डिसऑर्डर्स, है ना. अगर विटामिन डी कम हो गया है बच्चों में, सो इट इज यूज्ड इन रिकेट्स. बड़ों में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत है, इट इज, दैट इज आल्सो यूज्ड इन ऑस्टियोमलेशिया. प्लीज रिमेंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, understood? So these are the uses of vitamin D, which is very very important for calcium absorption. ठीक है, so remember by mnemonic bones, आप लोग ये लिख लेना, bones is the mnemonic for the uses of vitamin D. ठीक है, और अगर हम लोग हर दिन विटामिन डी का रिक्वायरमेंट देखेंगे, so it is 800 international unit per day. This is daily requirement of vitamin D. ठीक है, इन adult 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे. अंडरस्टूड? ओके, अब हम लोग आ जाते हैं गाइस हमारे ड्रग्स यूज्ड फॉर ऑस्टियोपोरोसिस पे. ड्रग्स यूज्ड इन ऑस्टियोपोरोसिस. Okay, now just remember guys, in bones we have three cells, or we can say there are two main cells present in the bone, that is which either degenerate the bone or which forms the bones. ठीक है, so there is two types of cells in the bone, that is osteoblast, which will form the bone. Bone formation के लिए it is important, and there is cell called osteoclast. नाम में meaning है, clast means it will resorb the bone, so it will decrease, or we can say it increases the resorption of bone. ठीक है, बोन से कैल्शियम को हटाता है. सो हमको कौन से ड्रग देने गाइस, विच विल डिक्रीज ऑस्टियोक्लास्ट, और विच विल इंक्रीज ऑस्टियोब्लास्ट, और विच विल डू बोथ, increase osteoblast and decrease osteoclast. So depending on this, depending on their mechanism of action, your drugs for osteoporosis is classified into three type. पहला, the drug which will decrease osteoclastic activity. Second, the drug which will increase osteoblastic activity. And third, the drug which have dual mechanism, मतलब वो osteoblast को बढ़ाता है और osteoclast को कम करता है. ठीक है, so हम लोग वही लिखने जा रहे हैं. So drugs inhibiting osteoclastic activity, and maximum drug work by this mechanism, osteoclastic activity. Second, drugs increasing activity of osteoblast, and the drugs which have dual mechanism. ठीक है, so हम लोग यहाँ ड्रग भी लिख लेंगे. तो drugs which inhibits osteoclastic activity, it is remembered by, there are drugs, it is BCG, DEC. Just remember, B stands for always the most important drug, that is called bisphosphonates. C stands for calcitonin, जो हमने already देखा है नाम. G for a drug which is not used because of nephrotoxicity nowadays, it is gallium nitrate. D stands for, it is a monoclonal antibody called denosumab. E stands for a hormone in female, that is estrogen. And C stands for a drug
that is called a group of class calcimimetics. अब इतना याद रखो आप लोग, सबको हम लोग थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखेंगे. Drugs increase which osteoblastic activity. So we have one drug and that is called PTH 134 analogs. ये पढ़ेंगे क्या है, don't worry. And there are two drug in that, just write down teriparatide, and we have abaloparatide. And the last is the drug which has dual mechanism. इसमें दो drug हैं guys. First is strontium ranulate and the second drug is guys romosozumab. ठीक है, ये आप लोग लिख लो. सो ये हमारा मेन क्लासिफिकेशन है ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन ऑस्टियोपोरोसिस. ठीक है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. अब हम लोग एक एक करके विल स्टार्ट विद ऑल द ड्रग्स. तो पहला ड्रग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज बिसफॉस्फोनेट्स. सो गिव द हेडिंग गाइस, बिसफॉस्फोनेट्स. So give the heading bisphosphonates. Okay, bisphosphonates. Guys, this bisphosphonates, ठीक है, this is the drug of choice. Just पहला एक यही लिख लेना, it is drug of choice for all osteoporosis, for all type of osteoporosis. ये हमेशा याद रखना. ठीक है, bisphosphonates. It is a pyrophosphate, ठीक है, compound which is drug of choice for all osteoporosis. अब इसका अगर हम mechanism of action guys देखें, mechanism of action, there are three mechanisms of bisphosphonate. पहला, it decreases ATP synthesis. guys सब लोग osteoclast को इनहिबिट करेंगे ये ड्रग, आपने देखा था क्लासिफिकेशन में. So in osteoclast, सो अगर ऑस्टियोक्लास्टिक एटीपी सिंथेसाइज नहीं हो रहा है ऑस्टियोक्लास्ट में, सो मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा, सो द सेल विल डाई. सेकेंड मैकेनिज्म, इट इनहिबिट्स अ फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन एंड दैट इज कॉल्ड farnesyl pyrophosphate synthase. It is an enzyme actually, farnesyl pyrophosphate synthase enzyme. ठीक है, so it inhibits an enzyme called FPPS, that is farnesyl pyrophosphate synthase enzyme, which is actually responsible for cholesterol. Cell membrane, you know, of any cell having cell membrane, उसमें cholesterol is important to we can say stabilize the cell membrane. तो वहीं पे वो काम करता है हमारा, अगर ये एंजाइम देखें उसी के फॉर्मेशन को. बट अगर हम ये ड्रग देंगे तो इट विल डिक्रीज दिस enzyme. So what will happen? It will decrease cholesterol production in cell membrane of osteoclast. So the cell membrane will not be formed and the cell will die. ठीक है, that is second mechanism. And third mechanism guys, याद रखो, osteoclast also damages the bone by increasing some inflammatory mediator like interleukin 6. तो हमारे ये ड्रग क्या करता है? It will decrease interleukin 6 mediated inflammation by osteoclast. ठीक है, so thereby it prevents the resorption of bone. Thereby it is very important drug for osteoporosis. We can say it is a drug of choice for all type of osteoporosis. ठीक है, तो बिसफॉस्फोनेट आपको समझ गया मैकेनिज्म, वेरी गुड. ओके, यूजेस और एडवर्स इफेक्ट में आने के पहले गाइस जस्ट रिमेंबर व्हिच आर द ड्रग्स इन बिसफॉस्फोनेट. सो बिसफॉस्फोनेट इज डिवाइडेड इनटू 3 जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन बिसफॉस्फोनेट, we have second generation, and third generation. Guys, just remember etidronate. We have two drugs, etidronate and toludronate. ठीक है, second generation just remember by mnemonic PIA. PIA is pamidronate, ibandronate, and alendronate. And third generation guys, we have two drugs, risedronate
and RZ जोलिड्रोनेट। ठीक है, सो 3 जनरेशन है हमारे बिस्फोस्फोनेट के। नाउ जस्ट रिमेंबर दिस इज 10,000 टाइम्स पोटेंट, this is only 100 times potent and it is 10 times potent. So we can say the least potent of all these 3 generation is the first generation, followed by the second generation, and the most potent is third generation. उसमें भी the most potent is zoledronate. ठीक है, समझ गया? ओके, नाउ आउट ऑफ दिस 3 guys, the first bisphosphonate to be discovered was etidronate. So first bisphosphonate is etidronate, and the latest one is the zoledronate. Is given through IV route once a year. And Rezi and we can say alendronate, they are also available as oral form. ठीक है, so they are mainly given orally, while this doledronate, which is once in a year IV, it is very good, hence it is a drug of choice. Maximum time हम लोग यही यूज करते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? सो ये हमारे 3 जनरेशन है ऑफ बिस्फोस्फोनेट। अब हम लोग आते हैं गाइस यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट पे। सो यूजेस देखा जाए, सो जस्ट रिमेंबर इट इज ड्रग ऑफ चॉइस। मैंने पहले ही लाइन में बोला था इट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। सो पहला यूज, जस्ट राइट डाउन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर all types of osteoporosis. अब क्या होते हैं लिखते हैं यहाँ पे, types of osteoporosis. Just write down, that is postmenopausal osteoporosis, steroid induced osteoporosis, ठीक है, सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड, जो मैंने आपको बताया था स्क्रीनिंग। ठीक, ओके। सेकेंड यूज इज इट इज ऑल्सो अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपर कैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी। एज यू नो, मैलिग्नेंसी में क्या होता है, देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन्स विच इंक्रीजेस द कैल्शियम, हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, और डिस्ट्रक्शन होगा बोन का, तो ये हमारा ड्रग क्या करेगा, डिक्रीजेस ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, देयरबाय डिक्रीजेस कैल्शियम। सो इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपर कैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी। And there is also a condition that is called, it is given in early stage of Paget's disease. Early stage of Paget's disease. Now इस बीमारी में, Paget's disease में guys क्या होता है, there are 2 stages, early and late. Early में there is increase osteoclastic activity, ठीक है, which leads to osteoporosis. अब हमारा ये ड्रग क्या कर रहा है गाइस, किसको इनहिबिट कर रहा है, ऑस्टियोक्लास्ट को। सो इट इज वर्किंग इन अर्ली स्टेज, सो इट इज गिवन इन अर्ली स्टेज ऑफ पेजेट्स डिसीज व्हिच कॉजेस ऑस्टियोपोरोसिस। लेट स्टेज में क्या होता है गाइस, देयर इज ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, बट हमारा ड्रग डज नॉट एक्ट ऑन ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बिस्फोस्फोनेट, तो अर्ली स्टेज पे वो काम करेगा। अंडरस्टूड? सो दिस आर द मेन यूजेस ऑफ बिस्फोस्फोनेट। अब हम लोग गाइस आ जाते हैं एडवर्स इफेक्ट पे। Adverse effect. So just remember, by a mnemonic guys, sore, एक घाव देके जाता है लॉन्ग टर्म में। So sore is the mnemonic for bisphosphonate adverse effect. पहला, it causes subtrochanteric fracture of femur. It increases risk actually, subtrochanteric fracture of femur. ये सब लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट है, fracture of femur. Second, O stands for, it causes osteonecrosis of jaw, and mainly the lower jaw, that is mandible bone. R stands for, it causes long-term renal failure, and the most common drug which causes renal failure is actually zoledronate. So renal failure का patient है elderly, so we do not prefer the drug that is bisphosphonate, mainly this drug. We will switch to another drug. ठीक, and the last is if it is given orally, देखो ये सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है, इट अगर पेशेंट ओरली लेगा, इट कॉजेस इसोफेजियल टॉक्सिसिटी, इसोफेजाइटिस वी कैन से। तब आप इसको देखो, आप ओरली लेगा ही भाई पेशेंट,
तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट द इसोफेजियल टॉक्सिसिटी, पेशेंट्स आर एडवाइज 3 एडवाइस, और पेशेंट्स आर टोल्ड टू फॉलो दिस 3 एडवाइस. सो द फर्स्ट एडवाइस जो हम लोग देते हैं पेशेंट को, दैट इज टेक द बिस्फोस्फोनेट एम्प्टी स्टमक. टेक bisphosphonate, take the tablet or bisphosphonate empty stomach. Second advice, take with plenty of fluid, take with plenty of water. And last, very important, do not lie down 30 minutes after taking the tablet. इससे क्या होगा गाइस, देयर विल बी प्रिवेंशन ऑफ रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस. ठीक है गाइस, सो याद रखना, टू प्रिवेंट इसोफेजियल टॉक्सिसिटी 3 एडवाइसेस आर गिवन टू पेशेंट. पहला, टेक द टैबलेट एम्प्टी स्टमक. सेकंड, टेक विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड डू नॉट लाई डाउन 30 मिनट्स आफ्टर टेकिंग द टैबलेट. समझ गए इतना? सो रेज द निमोनिक फॉर एडवर्स इफेक्ट ऑफ बिस्फोस्फोनेट. ठीक है, ये समझ गया. अब हम लोग सेकंड ड्रग पे आते हैं, दैट इज गैलियम नाइट्रेट. सेकंड ड्रग इन the class which decreases osteoclastic activity. Guys, just remember the one word for gallium nitrate. It was used initially, but due to nephrotoxicity, and we can say the safety profile is not good of this drug, so due to nephrotoxicity it is not used nowadays. Please remember, इतना ही आपको याद रखना है. ठीक है, अब हम लोग थर्ड ड्रग पे आते हैं, that is calcitonin. Now you know calcitonin, guys, is a peptide hormone. Everyone knows, secreted by parafollicular cells or C cells of thyroid gland. ठीक है, अभी क्या करता है गाइस, एक्शन इसका क्या है, डिक्रीजेस ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी. और कैसे वो बोन में कैल्शियम को बढ़ा रहा है, बाय डिक्रीजिंग सीरम कैल्शियम. बाय डिक्रीजिंग सीरम कैल्शियम इट इंक्रीजेस बोन कैल्शियम. और याद रखना गाइस, इसके 3 रूट अवेलेबल है इन ऑस्टियोपोरोसिस. इट इज गिवन बाय इंट्रानेजल, सेकेंड IM एंड सबक्यूटेनियस. ये दोनों रूट हम लोग ज्यादा देते हैं इमरजेंसी में, इफ देयर इज इमरजेंसी. ठीक है, एंड बट इंट्रानेजल वी यूज, ठीक है, अल्टरनेट आई मतलब नोज में, ठीक है, ऑफ कैल्सिटोनिन. ठीक है, और वन थिंग प्लीज रिमेंबर, इफ देयर इज हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है, तो पहला ड्रग और वी कैन से द फास्टेस्ट ड्रग विच विल डिक्रीज कैल्शियम इन द ब्लड इज calcitonin. तो प्लीज रिमेंबर, लिख लेना ब्रैकेट में, दैट इट इज द फास्टेस्ट सीरम कैल्शियम लोवरिंग ड्रग, दैट इज calcitonin. अंडरस्टूड? और इसका एडवर्स इफेक्ट हम लोग देखें, सो इट कैन लीड टू हाइपोकैल्सीमिया, तो और करवा सकता है भाई. ठीक है, ब्लड में कैल्शियम बढ़ा रहा है, इट कैन लीड टू हाइपोकैल्सीमिया. अब अल्टरनेट ईयर नोज में दे रहे हैं, सो इट कैन लीड टू एलर्जिक, वी कैन से राइनाइटिस समटाइम, ड्राई नोज समटाइम. ठीक है, एंड स्किन रिएक्शंस कैन अकर बिकॉज इट इज गिवन बाय सबक्यूटेनियस आल्सो, तो स्किन रिएक्शंस. ठीक, सो दिस आर द सम साइड इफेक्ट्स एंड सम फैक्ट्स अबाउट कैल्सिटोनिन दैट यू शुड नो. ये हो गया हमारा तीसरा ड्रग. अब लोग आते हैं फोर्थ ड्रग पे, दैट इज D, दैट इज डेनोस्टिमैब. सो गाइस हेडिंग दे दो, डेनोसुमैब. अब नाम में मीनिंग है, मैब मतलब आपको सबको पता है अब तक, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. So it is monoclonal antibody against someone. अब who is that against someone? Just remember उसके लिए. Now this is for example osteoclast. ठीक, ये osteoclast cell है. Now osteoclast में ना guys, there is some receptor called as rank receptor. ठीक है, मैं एक receptor बना रहा हूँ. For example this is called rank receptor. ठीक, ठीक है, ओके. नाउ रैंक रिसेप्टर से देयर इज वन मोर कंपाउंड विच गेट्स बाइंड, और फिर ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होता है और वो बोन को रिजॉर्ब करता है. ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड एज, यहाँ पे एक आके फिट हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड रैंक लाइगेंड. जस्ट रिमेंबर,
रैंक लाइगेंड। तो रैंक लाइगेंड जब रैंक रिसेप्टर से बाइंड होगा तब क्या एक्टिवेट होगा गाइस, ऑस्टियोक्लास्ट से एक्टिवेट होगा और वो क्या करेगा, बोन से कैल्शियम को हटाएगा, दैट इट विल कॉज ऑस्टियोपोरोसिस, बोन रिसॉर्प्शन। ठीक है, अब हमारा ये ड्रग इट इज अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट, प्लीज रिमेंबर, अगेंस्ट रैंक लाइगेंड, रैंक लाइगेंड। तो ये क्या करेगा, इट गोज एंड बाइंड टू रैंक लाइगेंड। डेनोसुमैब किससे बाइंड हो गया गाइस, रैंक लाइगेंड से। अब रैंक लाइगेंड भाई फ्री नहीं है रैंक रिसेप्टर से बाइंड होने के लिए, अगर रैंक रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा सो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट नहीं होगा और इट विल कॉज रिजॉर्प्शन ऑफ बोन, डिक्रीज रिजॉर्प्शन ऑफ बोन। ठीक है, सो इट विल बाइंड टू रैंक लाइगेंड प्लस डेनोसुमैब, सो इट विल डिक्रीज activity of osteoclast, that is it decreases resorption of bone. Please make a note, सबको समझ गया है, ठीक। सो रैंक लाइगेंड से कौन बाइंड हो जाएगा, डेनोसुमैब बाइंड हो जाएगा, ये हमारा रैंक रिसेप्टर खाली रह जाएगा, सो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट नहीं होंगे और बोन रिजॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यू कैन मेक अ नोट ऑफ दिस। ठीक है, सो डेनोसुमैब सिंस इट इज अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ऑलवेज एनी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज मेनली गिवन बाय सबक्यूटेनियस रूट, इट इज मेनली गिवन बाय सबक्यूटेनियस रूट। ओके, नाउ वन मोर थिंग अबाउट गाइस, डेनोसुमैब के लिए आपको पता होना चाहिए, it is safe in renal failure. Sometime when bisphosphonates are not preferred in osteoporosis, we can give denosumab, safe in renal failure. Also uses कहाँ होंगे, same almost bisphosphonate जैसा, that is osteoporosis, mainly it is used in senile osteoporosis. ठीक है, then it is also used in age related, sorry, that's steroid induced osteoporosis, steroid induced osteoporosis. And one more, it is used in one tumor, ठीक है, where there is more of hypercalcemia, and that is giant cell tumor, also used in giant cell tumor. ठीक है, अब एडवर्स इफेक्ट की माने, सो लिख लेना, एडवर्स इफेक्ट में ऊपर लिख दे रहा हूं गाइस, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डेनोसुमैब इज फर्स्ट, it can cause a typical fracture of femur, very long term, osteonecrosis of jaw, very long term, ठीक है, not common, ठीक, but इतना आपको याद रखना है, ठीक, it is given by subcutaneous route, understood? Okay, so this is all about the fourth drug। अब लोग आते हैं फिफ्थ ड्रग पे, that is E for estrogen, estrogen। Now guys, just remember that estrogen is a female sex hormone, ठीक है, and it is very important for bone, so it is a bone friendly hormone, ठीक है। इसके कुछ एक्शंस होते हैं इन जनरल बॉडी में, ठीक है, क्या क्या होते हैं आप लोग लिख लेना, that in bone it will increase bone calcium, ठीक है, so it is very important to be used in osteoporosis, ठीक है। अगर ब्लड में देखें, ब्लड में it increases HDL, so it is increasing the good cholesterol, so it is good for cholesterol also, ठीक है। अब एंडोमेट्रियम, अगर लॉन्ग टर्म एस्ट्रोजन बहुत बार it has a risk to cause endometrial carcinoma, it increases the risk of endometrial carcinoma. Breast also increases breast cancer risk, and liver में guys it increases excess of sometime clotting factor, which will increase risk of thromboembolism, याद रखना guys। सो हमारा जो एस्ट्रोजन है ना गाइस इन फीमेल, इट इज गुड फॉर टू थिंग्स, दैट इट इंक्रीजेस एचडीएल, सो गुड फॉर द कोलेस्ट्रॉल, एंड इट इंक्रीजेस बोन कैल्शियम, सो गुड फॉर बोन। बट ये तीन चीज के लिए एस्ट्रोजन अच्छा नहीं है, ठीक है। तो क्या किया गया, एस्ट्रोजन वाज कंबाइंड विद प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन, एंड दिस इज कॉल्ड एज हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, HRT, ठीक है। ये आपको एंडोक्राइन में एस्ट्रोजन में और अच्छे से बताया जाएगा जब सेक्स हार्मोन और अदर हार्मोन्स डिस्कस होंगे, ठीक है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्यों ऐड किया गया गाइस, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन
दोनों साथ में देने का फायदा क्या है, ये इसके लिए अच्छा है, बोन के लिए, ब्लड के लिए भी अच्छा है, ठीक है, एंडोमेट्रियम के लिए भी अच्छा है, बट ब्रेस्ट कैंसर ही कॉज करता है और क्लॉटिंग फैक्टर भी कॉज करता है। सो प्रोजेस्टेरोन ऐड करने से सिर्फ एक फायदा हुआ, दैट इट इंक्रीजेस एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का रिस्क कम हो गया, और सबके रिस्क वैसे के वैसे ही रहे, ठीक है। इसीलिए साइंटिस्ट ने व्हाट दे हैव डन, दे हैव मॉडिफाइड सम रिसेप्टर्स ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है। उन्होंने क्या किया भाई, ऐसे कुछ ड्रग बनाए जो बोन के लिए तो अच्छे होंगे, इसके लिए भी अच्छे होंगे, इसके लिए भी अच्छा है वो ड्रग, इसके लिए भी अच्छा है, बट लीवर में जो क्लॉटिंग फैक्टर एस्ट्रोजन बढ़ा रहा था, वो एक ड्रग, उसका वही साइड इफेक्ट है जो एस्ट्रोजन का है, दैट इट आल्सो इंक्रीजेस क्लॉटिंग फैक्टर लीडिंग टू थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। और सच टाइप ऑफ ड्रग, दे एक्ट ऑन सम रिसेप्टर, दे मॉड्यूलेट द एस्ट्रोजन रिसेप्टर, एंड दैट क्लास ऑफ ड्रग इज कॉल्ड गाइस SERM। आप लोग लिख लेना, द क्लास ऑफ ड्रग इज कॉल्ड SERM। SERM का फुल फॉर्म गाइस इज सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। अब इसके बारे में, मॉड्यूलेटर मोस्ट कॉमन ड्रग गाइस लिख लेना, रेलॉक्सीफेन, ओरल 60 mg टैबलेट ऑफ रेलॉक्सीफेन, ठीक है, रेलॉक्सीफेन। अब ये क्या है इसमें, देखो ये बोन के लिए इट इज वेरी गुड, सो बोन में कैल्शियम बढ़ा रहा है, ये आप लोग लिख लेना। ब्लड के लिए इंक्रीजेस HDL, सो इट इज गुड फॉर ब्लड कोलेस्ट्रॉल। एंडोमेट्रियल के लिए डिक्रीजेस एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ब्रेस्ट के लिए डिक्रीजेस एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ये चार अच्छे हैं, बट ये जो डिसएडवांटेज था एस्ट्रोजन का, वो उसमें भी रह गया, दैट इट आल्सो इंक्रीजेस क्लॉटिंग फैक्टर, सो इट कैन लीड टू थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। सो वी कैन से द सर्म, अगर मुझे इन दोनों में से कोई यूज करना रहा, एस्ट्रोजन या HRT या सर्म में से इन ऑस्टियोपोरोसिस, सो आई विल डेफिनेटली यूज सर्म, दैट इज रेलॉक्सीफेन, बिकॉज इट हैज मेनी एडवांटेज एक्सेप्ट वन डिसएडवांटेज, दैट इट इंक्रीजेस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म रिस्क, ठीक है, इतना समझ गया। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं गाइस हमारे लास्ट ड्रग पे, एंड दैट इज कैल्सीमाइमेटिक्स, ठीक है। अब उसमें आने के पहले याद रखना, कैल्सीमाइमेटिक देख रहे हैं, बट ऑस्टियोपोरोसिस अगर कोई भी टाइप का है, सो वी विल ऑलवेज यूज बिस्फोस्फोनेट, ठीक है। ये सब सप्लीमेंट्स हैं, दे कैन बी यूज सम टाइम, ठीक। ओके गाइस, लास्ट ड्रग इन the class which decreases osteoclastic activity is calcimimetics. Calcimimetics. Now इसका मीनिंग क्या है, कैल्सीमाइमेटिक मतलब कैल्शियम जैसा मिमिक करेगा। कहां पे यूज होता है ये पहले लिख लो, इट इज यूज्ड इन ऑस्टियोपोरोसिस ड्यू टू हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। you know parathyroid gland, parathyroid PTA secrete करता है, which will increase serum calcium by decreasing bone calcium, ठीक है। बट अगर हाइपरपैराथायरॉयडिज्म बढ़ेगा मतलब सीरम कैल्शियम और बढ़ेगा, मतलब बोन में और रिजॉर्प्शन होगा, सो देयर इज सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस बिकॉज ऑफ हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। तो उसमें ये ड्रग क्या करते हैं, कैल्सीमाइमेटिक्स। अब आपको याद रखना है गाइस, PTH हार्मोन, पहले इतना समझ लो बेसिक्स, PTH हार्मोन कब सिक्रीट होगा, सिक्रीटेड व्हेन, क्या करता है, सीरम में कैल्शियम को बढ़ाता है, तो जब सीरम कैल्शियम कम होगा तब क्या सिक्रीट हो जाएगा, PTH। सो सिक्रीटेड व्हेन देयर इज डिक्रीज सीरम कैल्शियम, ठीक है। सो व्हेन देयर इज डिक्रीज कैल्शियम, सो योर पैराथायरॉयड ग्लैंड एक्टिवेटेड, and parathyroid gland will secrete PTH hormone, ठीक है। So we can say that calcium is the source, वो खुद बोल रहा है कि मुझे अब सिक्रीट, मतलब वो खुद बता रहा है सॉरी कि PTH जब आप सिक्रीट करो बिकॉज मैं अब कम हो गया हूं। So we can say calcium is the main source of PTH secretion, ठीक है। ओके, सो अगर कैल्शियम बढ़ता है, ध्यान से सुनना, कम होता है तो वही बोलेगा कि भाई आप सिक्रीट करो, अगर बढ़ेगा तो कैल्शियम ही जाके पीटीएच से कहीं बाइंड होता है। ध्यान से सुनना, कैल्शियम व्हेन इट इंक्रीजेस, ध्यान से सुनना, जनरली नॉर्मली व्हेन कैल्शियम इंक्रीजेस इन ब्लड, it gets bind to some receptor in parathyroid gland. This is called calcium sensing receptor.
in parathyroid gland. So जब बढ़ जाएगा, so it gets bind to parathyroid gland which makes receptor CSR, calcium sensing receptor. अब वो क्या करेगा? It will decrease PTH hormone which will decrease serum calcium. Correct? This is generally होता है generally. ठीक है, बढ़ा कम हुआ ऐसा होता है. But in condition of hyperparathyroidism, please remember, hyperparathyroidism ऐसी condition है when this calcium sensing receptor we can say is not able to stimulate the PTH, और जिसके वजह से मतलब not able to decrease the PTH hormone, और कैल्शियम बढ़ा ही रहेगा. आप समझ रहे हो? नॉर्मली अगर कैल्शियम बढ़ रहा है ब्लड में, सो इट विल बाइंड टू CSR विच विल डिक्रीज PTH विच विल डिक्रीज सीरम कैल्शियम. ठीक है, जो एक्सेस हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है. बट इन हाइपरपायरोथायरॉयडिज्म बिकॉज ऑफ excessive serum calcium, because of excess serum calcium, calcium is not able to bind CASR, which will not be able to, then इसकी वजह से क्या होगा? So not able to decrease serum calcium. ठीक है, बिकॉज कैल्शियम बाइंड ही नहीं हो पा रहा है. अब हमने क्या किया साइंटिस्ट लोगों ने, दे हैव मेड अ ड्रग विच विल मिमिक लाइक दिस CASR. सो जब हाइपरपायरोथायरॉयडिज्म में कैल्शियम बढ़ेगा, सो कैल्शियम अब इसको अलाउ करेगा, इट विल गेट बाइंड टू CASR, और CASR क्या करेगा? इट विल डिक्रीज PTH विच विल डिक्रीज सीरम कैल्शियम. सो कैल्सीमाइमेटिक ड्रग्स आर द अगोनिस्ट, और दे विल मिमिक like calcium sensing receptor. So calcium sensing जब हम लोग ये देंगे, so calcium now will bind with CASR which will decrease serum calcium. और अगर serum calcium कम हो जाएगा, so there is decrease bone resorption. Guys समझा है ये? Okay, good. So we have two drugs in calcimimetics जो CASR जैसा मिमिक करते हैं, मतलब उसके जैसा एक्ट करेंगे ताकि कैल्शियम आके बाइंड करे. And these two drugs are, we have sinacalcit and italcalcitide, and both are peptide hormone, so they are given by injection, not by oral. ठीक है, अंडरस्टूड. प्लीज रिमेंबर दिस ड्रग दैट इज सिनाकैल्सिट एंड इटालकैल्सिटाइड. कैसे वो काम करेंगे? दे आर acting like CASR, they are mimicking like CASR, but they are not CASR, they are mimicking like calcium sensing receptor. कि मैं सेंस कर रहा हूं कैल्शियम को कि भाई वो बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है, एक्सेस है, सो भाई PTH को जाके बोलेंगे कि भाई आप कैल्शियम को कम कर दो. अंडरस्टूड? Okay, so it is used in osteoporosis due to hyperparathyroidism. This is all about now drugs डिक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोब्लास्टिक. अब हम लोग आते हैं हमारे सेकेंड ड्रग पे, सेकेंड क्लास, दैट इज ड्रग्स इंक्रीजिंग ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी पे. सो ड्रग्स इंक्रीजिंग ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी. सो वी हैव गाइस ओनली वन ड्रग जो ये करता है, एंड दैट ड्रग इज PTH 134 एनालॉग्स. सर ये क्या है? PTH सबको पता है, पैराथ हार्मोन. बट सर आपने बोला था सबसे स्टार्टिंग में दैट पैराथ हार्मोन विल इंक्रीज रिजॉर्प्शन ऑफ बोन. भाई वो कैल्शियम ब्लड में बढ़ा रहा है, कैसे? बोन कैल्शियम को घटा के. सो इट शुड नॉट बी यूज्ड वेयर? इट शुड नॉट बी यूज्ड वेयर? इट शुड नॉट बी यूज्ड इन osteoporosis, guys. But guys, there is a twist. Just remember that PTH is made up of 84 amino acids. ठीक है, ओवरऑल अगर PTH हम देखेंगे, इट विल इंक्रीज ऑस्टियोपोरोसिस, नॉट यूज, इट विल इंक्रीज रिजॉर्प्शन. बट अगर उनमें से हमने 134 एनालॉग उसको हमने अलग कर लिया, क्या होता है? जो 1 to 34 अमाइनो एसिड चेन है, दे इंक्रीजेस ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी. सो व्हेन इट इंक्रीजेस ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, वी कैन यूज इट फॉर ऑस्टियोपोरोसिस. एंड द ड्रग्स which are there, which are PTH analogs, which are again peptide hormone given by injection, and the drugs are teriparatide, हमने ऑलरेडी एग्जांपल लिखा था, teriparatide and abaloparatide.
So they are given 20 microgram subcutaneously daily for 2 years. ठीक है, सो डेली हम लोग देंगे पीटीएच एनालॉग 20 माइक्रोग्राम सबक्यूटेनियसली डेली फॉर 2 years. अब अगर इसका हम लोग साइड इफेक्ट देखें गाइस, तो इट इज क्या, पीटीएच है. पीटीएच इनिशियली क्या करेगा, इट विल कॉज हाइपरकैल्सीमिया. इट कैन लीड टू हाइपरकैल्सीमिया इनिशियल डोज में, and sometime it can also lead to postural hypotension. And subcutaneous है तो allergic reactions, sometime skin reactions, sometime gastritis. ठीक है, understood? So maybe initial dose में it can lead to hypercalcemia, postural hypotension, sometime allergic reaction, and lead to gastritis also. So this is all about the PTH analog, teriparatide and abaloparatide. This is a new drug of PTH analogs. ठीक है, understood guys? So this is all about the second class of drug which increases osteoblastic. अब हमारे last topic पे, मतलब last class of drug पे आते हैं, that is drug which has dual mechanism. So dual mechanism drug, the third last mechanism of, or the last drug used in osteoporosis is having dual mechanism drugs. Guys, in that the first is strontium ranelate. So just remember, it is a drug which has two mechanisms. First, it increases osteoblastic activity and decreases osteoclastic activity. ठीक है, that is strontium ranelate. अब ये it is not used nowadays because it causes some serious risk, cardiovascular risk, like it can cause MI, it can cause stroke, it can cause thromboembolism. Not used hence. So not used because it doesn't have a good safety profile. Long term it can lead to MI, stroke, thromboembolism. But आपको नाम पता होना चाहिए, and the mechanism, it has dual mechanism. ठीक है? Now come moving to the last drug, that is called romosozumab in dual mechanism drug. Okay, so we'll move to the last drug in dual mechanism, and that is, guys, romosozumab. So romosozumab, guys, नाम में ही meaning समझ रहा होगा, it is a monoclonal antibody. Now it is monoclonal antibody against a protein called a glycoprotein. ये GP मतलब, guys, glycoprotein that is called sclerostin. ये कौन secrete करता है, लिख लेना. Sclerostin is a glycoprotein secreted by ऑस्टियोसाइट, जो क्या करता था, जो जाके बोन फॉर्मेशन को इनहिबिट करता था. कैसे? बाय इंक्रीजिंग ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी एंड डिक्रीजिंग ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी. अब हमारे ये ड्रग क्या करेगा, इट इज अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट जीपी, दैट इज स्क्लेरोस्टिन प्रोटीन. सो इट विल इनहिबिट और इट विल इंक्रीज ऑस्टियोक्लास्टिक, नाउ सॉरी ऑस्टियोब्लास्टिक का बढ़ा देगा उसके अगेंस्ट, एंड इट विल डिक्रीज ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी. Understood, guys? Please remember, this is very important drug. ठीक है, again a monoclonal antibody, so given subcutaneous. Dose is 210 mg every month for 12 months. And but the major sometime adverse effect it can lead to is hypocalcemia, and it also causes serious risk like MI, stroke, and thromboembolism. ठीक है, so please remember, these are the adverse effects that it can lead to hypocalcemia and some serious risk, MI, stroke, and thromboembolism. And it is a monoclonal antibody against sclerostin protein, got approved in 2020 for osteoporosis treatment. Understood? So this is all about, guys, the drugs acting on dual mechanism, and in general all about the drugs used in osteoporosis. अगर हम समरी में देखें तो आपको बस याद रखना है, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हम लोग विटामिन डी और कैल्शियम तो देना ही है, साथ में और क्या देना है, या ड्रग्स इनहिबिटिंग ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी में हम देखेंगे 6 ड्रग था हमारा, और ड्रग्स एक्टिवेटिंग ऑस्टियोब्लास्टिक में 1 ही ड्रग है, और ड्रग्स हैविंग डुअल मैकेनिज्म में वी हैव 2 ड्रग. ठीक, दिस इज द ओवरऑल समरी ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, एंड दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. विल मीट इन द नेक्स्ट
टॉपिक ऑफ सम इंटरेस्टिंग टॉपिक इन द एंडोक्राइन. तब तक आप प्लीज पढ़ते रहिए एंड कीप लविंग गाइस. थैंक यू सो मच.